Yes. Good evening, everyone. Welcome all the participants and CA Tarun Arora sir. Sir, thank you so much. आपने अपना टाइम दिया इस वेबिनार के लिए. Today topic for our webinar is GST latest amendments through GST Council meetings. Sorry. Thank you, Sumit sir, for giving me this opportunity. We all know about Sumit sir, but still मैं उनके बारे में brief दे देती हूँ. He is a fellow member of ICI, having 18 plus years of experience. He has also served as secretary of NIRC of ICI during his tenure of NIRC regional council member. Sumit sir is founder of CASA. CASA has been serving CA profession since 2010. A few days back also we have celebrated CASA 16th Foundation Day, and it was amazing. It was really very amazing. I also attended that. CA Sumit sir, along with his team, always believe in grooming young पूजा जी, CAs. मैं कहूंगा कि मेरा ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देकर तरुण जी का बारे में बताएं, क्योंकि इज द सर सर गेस्ट आपके ऑफ द बारे डे। में भी ऑल तो सबको थैंक पता यू। है, बट जो थैंक कुछ यू। लोग नए ऐड होते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कासा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं. थैंक बट ओके, थैंक यू. अभी जीएसटी के बारे में, एज वी ऑल नो, जीएसटी 2.0 में देयर आर मेनी अमेंडमेंट्स, मेनी चेंजेस. सो तरुण सर हैज जॉइंड अस फॉर एक्सप्लेनिंग दोज चेंजेस. Tarun sir is a qualified chartered accountant and a commerce graduate. He's a dedicated student since 2015. He has conducted over 600 seminars and webinars and at forums like ICI's GST courses and CP seminars. He is known for his ability to simplify complex GST topics. Tarun sir is regularly representing clients before tax authorities across India. He's serving as a consultant on the panel of various listed companies as well as large Indian and MNC organizations. Thank you, Tarun sir. Thank you, Sumit sir. I would like to invite Sumit sir for a few words. Thank you, Pooja, and thanks to all participants. Special thanks to Tarun Bhai, who always ready to deliver the session on GST whenever we requested for. So once again, thank you very much, Tarun Bhai. And it is high time to understand that GST 2.0 latest changes, because it is effective from 22nd September. So definitely we will learn. You have any query, you can post in the chat box. Asa ji is also here. Asa ji also GST student and speaker on the GST. So we'll take up all the queries, Pooja ji and Asha ji. And once again, welcome to each one Thank of you, sir. you. Now move forward. Straight away, I request Tarun Bhai to take up the technical session. Over to you, Tarun Bhai. Thank you, Sumit ji. Thank you, Pooja ji. And before starting this session, I would like to thank CASA to give me the opportunity to share my thoughts and share my views on the issue of new GST rate changes and the concepts that may undergo changes subsequent to the amendment that will come up. So we will understand what are those changes when I am saying. So it would be a very big change, specifically for one of the industries that we would be discussing. So just give me a second to bring my screen on. Sir, please allow me to share the screen. Just a minute. I think we have not allowed. Tarun ji, please try once again. It is allowed? Uh, No? no. पर तरुण जी को को होस्ट पहले अच्छा, बनाना ओके होगा ना. ओके ओके ओके, हाँ, तरुण को होस्ट नहीं. तरुण जी इज नॉट को होस्ट. जस्ट ए मिनट. यस, तरुण जी, नाउ यू प्लीज ट्राई. वन में फिर वाईफाई नहीं आएगा, खुला रहने तो उनको बोलो धीरे धीरे. Yes, it's working now. Uh, so we would be discussing the amendments proposed through the 56th council meeting. I have divided the entire agenda into seven broad categories. The last category, the seventh category per se, would require an elaborated discussion of one and a half hour. So that we will try to cover each and every topic, but seventh day we would be devoting only a cosmetic time. So first of all, there would be some changes in rate of taxes that we would be discussing. Because there is change in rate of taxes, we also have to understand what is the exact rate that has to be applied if there are overlapping transactions. Certain supplies have been exempted, so what is the impact of those supplies?
Certain supplies have been made taxable without ITC. What is the impact of those supplies? Then we will discuss some sectorial updates and some updates in relation to GST tribunal. So starting on with the various dates. So the date change would be effective from 22nd of September, except for pan masala, gutka, cigarette, chewing tobaccos, etc., where the date would be notified in future. So अभी सारे products जितने भी press release के अंदर आए थे, सबकी notifications issue हो गई हैं. Those would be effective from 22nd September, except जो मेरे टोबैको प्रोडक्ट है, पान मसाला, गुटखा वगैरह थे, वहां पे दी डेट इज येट टू बी नोटिफाइड. जेस्टेड को लेके कुछ प्रोविजन है, वी विल डिस्कस. उनकी डेट सितंबर, दिसंबर और जून बन रही है. क्या है वो डेट्स, वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द डेलिब्रेशन, जब हम उस पार्ट पे पहुंचेंगे. रिफंड और रजिस्ट्रेशन को लेके गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिए एंड देन इंटरमीडियरी. तो वी विल डिस्कस दीज अमेंडमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन. So the first and foremost thing that we need to understand is what is the applicable tax rate. So there are changes in tax rate of goods. There is changes in tax rate of services. Goods के भी tax rate में change है, services के tax rate में भी change है. Issue ये आ रहा है कि अब मेरे को time of supply कैसे interpret करना है, कैसे लगाना है. Section 14 specifically deals with the situation that if there is a change in rate of tax, then which rate has to be applied. And what exactly time of supply means? Time of supply is the time or the date when the liability accrues. जिस दिन liability confirm हो गई, decide हो गई, and उसके subsequent month के अंदर I have to discharge that liability. So time of supply is that date when the liability accrues. तो वो मैं यहाँ पे सेक्शन 14 बोलता है कि आप सेक्शन 12 जो नॉर्मल प्रोविजन है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको भूल जाइए, मुझे पढ़िए. आई विल टेल यू व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब भी रेट चेंज होगा. सो इसको प्रोविजन को एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से समझते हैं या टेक्निकल तरीके से समझते हैं. इन एनी ट्रांजेक्शन there are three events: actual supply, invoice and receipt of payment. For example, मैं अगर ये पेन की बात करता हूं, तो मैंने पेन आपको दिया कब, सप्लाई कब कर दिया, इस पेन का इनवॉइस कब बनाया और इसकी पेमेंट कब आई. सो एज पर सेक्शन 14 इट सेज दैट आप ये तीन चीजों को अपने दिमाग में रखिए और प्लॉट करिए टाइमलाइन के ऊपर. टाइमलाइन को आप समझ लीजिए, दिस इज 25, 26, कट ऑफ डेट 22 सितंबर आ गई. अब आप इन तीन चीजों को प्लॉट करिए. आपने प्लॉट किया कि मैंने 19 सितंबर को ये पेन सुमित जी को सेल कर दिया, तो मैंने सेल कर दिया 19 सितंबर को, और मैंने इसका इनवॉइस भी बना दिया 19 सितंबर को. सो दो इवेंट्स मेरी पहले हो गई और इसकी पेमेंट सुमित जी ने मेरे को करी अक्टूबर में, यानी एक इवेंट बाद में हो रही है. तो दो इवेंट्स 22 सितंबर से पहले, वो दो इवेंट्स कोई सी भी हो सकती हैं. तो अगर दो इवेंट पहले हो गई तो मेरा पुराना रेट लगेगा. और अगर इन तीन में से, यानी सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन तीन में से कोई भी दो इवेंट अगर बाद में होंगी तो नया रेट लगेगा. तो सर 2/3 का रूल है, सप्लाई, इनवॉइस, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. अब अगर हम गुड्स की बात करते हैं, तो गुड्स के अंदर क्या होता है सर, जिस दिन मैं सप्लाई करता हूं, लॉ बोलता है आपको इनवॉइस उस दिन इशू करना मैंडेटरी. आप उससे पहले कभी भी करो, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते हो, आप डिले नहीं कर सकते हो. उसकी एक ही एक्सेप्शन है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. जब मैं कंसाइनमेंट सेल करता हूं कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने आज माल बेचा, मतलब जो मैंने माल भेजा है वो एक्चुअल में खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, तो एक्सेप्ट फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, जब भी मैंने सप्लाई करी उसी दिन मेरे को इनवॉइस काटना जरूरी है. यानी सप्लाई और इनवॉइस दोनों साथ साथ चल रहे हैं. जब दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई है वो पहले ही रह जाएगा गुड्स के केसेस के अंदर. बट देयर कुड बी स्पेसिफिक सिचुएशन जब ये बाद में भी आए. सर्विसेज के केसेस में क्या हो सकता है सर, वहां पे ओवरलैप हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इस कैटेगरी में वैसे कोई चेंज नहीं आया, स्पेसिफिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आया है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं लूंगा पर से उसमें चेंज नहीं आया है. तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसके लिए मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया और हमने डिसाइड कर रखा था हर महीने के एंड पे इतने, जितना काम हो रखा होगा उतनी में आपको
पेमेंट कर दिया करूंगा। तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर का इनवॉइस 30 सितंबर को इश्यू होगा और उसकी पेमेंट मैं अक्टूबर में करूंगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर का इनवॉइस 30 सितंबर को होगा और उसकी पेमेंट मैं अक्टूबर में करूंगा। अब मैंने इसका इनवॉइस बनाने लगा 30 सितंबर को, या आप बनाने लगे 30 सितंबर को। अब आपने देखा यार 1 से 21 तो इसका अलग रेट था, 22 से लेके 30 तक अलग रेट था। तो आपको ये देखना है, 3 इवेंट्स को प्लॉट किया, 1 से 21 की इवेंट की बात करते हैं। तो सप्लाई तो 1 से 21 में हो गई थी, लेकिन उसका इनवॉइस भी बाद में हो रहा है, उसकी पेमेंट भी बाद में आ रही है। क्योंकि दोनों इवेंट्स बाद में हो रही है तो मेरे को वहां पे भी नया रेट लगाना है। ठीक है सर, अब मुझे नया रेट लगाना है, ये तो समझ लग गया। अब जब मैं नया रेट लगाऊंगा तो मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला, 30 सितंबर को क्या हो रहा है, इनवॉइस बन रहा है। 30 सितंबर को इनवॉइस बन रहा है, अक्टूबर में पेमेंट आ रही है। नया रेट लगना ये समझ लग गया, लेकिन लाइबिलिटी कब आई? लाइबिलिटी सितंबर की लाइबिलिटी बनी या अक्टूबर की लाइबिलिटी बनी? तो लॉ ये बोलता है, सेक्शन 14 बोलता है कि जब आप न्यू रेट में जाएंगे तो इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट जो पहले हो जाएगा, इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट में से जो पहले आ जाएगा, उस दिन आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी। यानी हमारे एग्जाम्पल में 30 सितंबर पे मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट हो जाएगा और मुझे टैक्सेस को पे करना पड़ेगा। तो सर ये सिंपल रूल है, सेक्शन 14 2/3 का रूल है। इसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर हम जनरली जिस दिन सप्लाई करते हैं उसी दिन इनवॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम केसेस होंगे जहां पे आपको रेट को एनालाइज करना होगा, बट कुछ एग्जांपल्स एक्सेप्शन हो सकती है। अब एज्यूम करते हैं कि किसी को टैक्स प्लानिंग करनी थी। मेरा पेपर का रेट पहले 12% का था, अब 18% पे जा रहा है। मेरा पेपर का रेट पहले 12% का था, अब 18% पे जा रहा है। तो मैंने और सुमित जी ने बोला, यार ऐसा करते हैं तरुण, तुम ना मेरे को इनवॉइस भी आज बना दो, इनवॉइस भी आज बना दो, माल तुम 1 महीने बाद भेजना क्योंकि मेरे पास स्टोरेज नहीं है। माल 1 महीने बाद भेजना, मेरे पास स्टोरेज नहीं है। तुम मेरे को इनवॉइस आज बना दो और मैं तुम्हें एक चेक दे देता हूँ आज की डेट का, चेक दे देता हूँ आज की डेट का। आप अपनी किताबों में उसको रिसिप्ट दिखा देना, मैं अपनी किताबों में पेमेंट दिखा दूंगा। डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भैया इनवॉइस भी पहले हो गया, पेमेंट भी पहले हो गई, लेकिन आपने डिलीवरी करी 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चीज, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये भी सेक्शन 14 में लिखा हुआ है सर। अभी हम जो डिस्कशन करें दैट इज सेक्शन 14। आप जब ये टैक्स प्लानिंग करोगे तो आपको ये देख के चलना है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपकी बात मान लेंगे, वो जो चेक की डेट 21 सितंबर मान लेंगे, बशर्ते वो 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए रेट चेंज के। बशर्ते वो 4 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो 4 दिन के बाद हुआ तो हम ये मानेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट जो है वो जिस दिन बैंक में आपकी एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन मानी जाएगी। यानी अगर टैक्स प्लानिंग भी करनी है तो 4 दिन के अंदर वो पेमेंट को आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सर्विसेज के केस के अंदर कई जगह पे ये इशू आएगा कि सर्विसेज में भी 12% का रेट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब 12% का रेट एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो 5 में चला गया है या वो 18 में चला गया है। तो बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने एडवांस ले रखे होंगे, आपने एडवांस में ऑलरेडी 12% पे कर रखा होगा। उस पे न्यू रेट चाहे 5 लग रहा हो चाहे 18 लग रहा हो, रेट तो अलग लग रहा है। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपने जब एडवांस रिसीव किया, आपने रिसिप्ट वाउचर के बेसिस पे उस पर टैक्स पे कर दिया। आपने रिसिप्ट वाउचर एडवांस रिसीव किया, रिसिप्ट वाउचर बनाया और बोला सर 1 लाख रुपए का एडवांस आया है, 12,000 रुपए की लाइबिलिटी बनी, मैंने पे कर दी। आपने सप्लाई करी 2 महीने बाद, जिस दिन उसने सप्लाई रिसीव करी, आपने इनवॉइस बनाएंगे 1 लाख रुपए का, क्योंकि अभी तक इनवॉइस तो बना नहीं था, पहले बना था रिसिप्ट वाउचर। आपने 1 लाख रुपए का इनवॉइस बनाया, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाया, आपने बोला 5,000 की आउटपुट लाइबिलिटी माइनस एडवांस जो मैंने दे रखा है वो आप माइनस कर देंगे। यानी आप रिसिप्ट एडजस्टमेंट टू एडवांसेस में दिखाएंगे, 1 लाख के सामने 12,000 रुपए का रिवर्सल करेंगे, 7,000 रुपए की आउटपुट लाइबिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, जो बाकी लाइबिलिटीज के साथ एडजस्ट हो जाएगी। यानी क्योंकि सर्विसेज पे ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर रखा था, एडवांस के टाइम पे कर रखा था, उससे ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। बहुत सिंपल है,
वो आपने पहले पे कर रखा है, उसको इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स की तरह ध्यान करेंगे। एक्चुअल लायबिलिटी जो आएगी माइनस एडवांस टैक्स, जो बैलेंस है वो आपकी बाकी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। और अगर कम है तो वो फ्यूचर में आपका एडजस्ट होता रहेगा नेगेटिव बैलेंस बन के, जो ऑलरेडी जीएसटीआर 3B में आ चुका है। तो यहाँ पे मोटी मोटी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक इशू जो बार बार हम लोगों के पास आ रहा है या मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर, एज्यूम करते हैं मोबाइल का रेट चेंज हो गया, ये पहले 12% पे था, अब एज्यूम करते हैं कि ये 5% पे हो गया है। तो सर अब ये जब वापसी आएगा, अब जब ये वापसी आएगा तो इस पे क्या रेट लगेगा? 5% लगेगा, 12% लगेगा? सर इसके लिए समझने के लिए ना सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप B2C ट्रांजेक्शन। हमारे लिए क्या है, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये B2B से आ रहा है। क्योंकि B2B से आ रहा है तो हमें सवाल आ रहा है कि 5% लगेगा या 12% लगेगा। आप इसको B2C ट्रांजेक्शन समझेंगे, आपको आंसर समझ लगेगा। कैसे समझ लगेगा? सर आप बोलेंगे ये कितने की सप्लाई थी? 100 रुपए की। इस पे टैक्स कितना पे किया? 120 रुपए। आपने कस्टमर से, सॉरी 12 रुपए, आपने कस्टमर से 112 रुपए ले लिए। जब आपने कस्टमर से 112 रुपए ले लिए और वो बोलता है कि सर ये मेरे को प्रोडक्ट समझ नहीं आया, ये वापसी ले लीजिए, और आपकी टर्म्स है कि मैं वापसी लूंगा। अब आप उस B2C कस्टमर को कितने वापसी करेंगे? क्या आप उसको बोलेंगे सर रेट चेंज हो गया है तो मैं 112 की जगह 105 दूंगा? बोलेगा सर मैंने आपको 112 रुपए दिए, मुझे 112 रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि इसमें सेल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सेल ही नल्लीफाई हो रही है। उस केस में आप जब क्रेडिट नोट बनाएंगे, आप पूरे 12 रुपए का बनाएंगे। इसमें क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ लग जाता है, हाँ यार उसने तो 112 रुपए दिए, उसको वापसी 112 जाएंगे। सो अगेन B2B ट्रांजेक्शन में भी सेम होगा। अगर बाद में सेल रिटर्न आ रही है तो इट मींस जो ओरिजिनल सप्लाई है वो नलिफाई हो रही है, उसमें इंपैक्ट आ रहा है, और उसका इंपैक्ट ऑलरेडी उसका टाइम ऑफ सप्लाई पुराने टाइम, मतलब 22 सितंबर से पहले उसका टाइम, उस सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई पहले से आ चुका है। उस पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगना है उस सप्लाई पे ये डिसाइड हो चुका है 22 सितंबर से पहले। 22 सितंबर के बाद अगर वापसी आ रही है, इट इज नॉट अ न्यू सप्लाई, इट इज इम्पैक्टिंग, चाहे वो रिटर्न ही है। सो इट इज द सप्लाई विच हैज ओरिजिनली टेकन प्लेस, जिसका एक आफ्टर इफेक्ट आ रहा है। तो आफ्टर इफेक्ट पे कोई आपको नया रेट नहीं लगाना, पुराने रेट ही आपको अप्लाई करके चलने हैं। सर यहाँ पे हमने डिस्कस किया सेक्शन, सॉरी, सेक्शन 14 ऑफ द जीएसटी एक्ट, चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस। अब हम आ रहे हैं, सर मैंने पूरे सेगमेंट को पहले टेक्निकल पार्ट में डिस्कस किया कि कहाँ पे आपको पिन पॉइंट करके एफर्ट करना पड़ेगा, और जहां पे रेट चेंज हो रहे हैं वो तो बहुत इजी है कि मेरे पास ये गुड्स आ रहे हैं, मैंने रेट चेंज किया, काम करता हूं। अब हम जिस कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले टैक्सेबल थी, अब एग्जेम्प्ट हो रही है। पहले टैक्सेबल थी, अब एग्जेम्प्ट हो रही है। सर हम जब भी कोई लिस्ट पढ़ेंगे आपको ये एज्यूम करके चलना है, ये टेंटेटिव लिस्ट है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। एक्चुअल लिस्ट आपको जो नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज आई है वहीं से लेके चलनी पड़ेगी। ड्यूरिंग दिस 1 hour डेलिब्रेशन, 1.5 hour डेलिब्रेशन, आई कैन नॉट ब्रिंग आउट ईच एंड एवरी आइटम फॉर डिस्कशन। तो पहले जो सप्लाई टैक्सेबल एग्जेम्प्ट हो रही है, आई थिंक यहाँ पे मैंने 100% कवरेज कर रखी है, बट अगेन इट इज बेटर टू रीवेरीफाई। सो आप देखेंगे कुछ फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि यूएसटी मिल्क हो गया, पनीर हो गया, पिज्जा ब्रेड हो गई, रोटी, पराठा, जिसपे बहुत डिस्प्यूट भी हुआ था, भैया रोटी है तो 5%, पराठा है तो 18%, गवर्नमेंट ने इन सबको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो इसके ओल्ड रेट लिखे, न्यू रेट का मतलब, क्योंकि एग्जेम्प्ट हो गए तो न्यू रेट कुछ है ही नहीं। उसी के अलावा आप देखेंगे कुछ इनके मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ से डील करते हैं, वो 5% पे एग्जेम्प्ट हो गए। कुछ स्टेशनरी आइटम्स या एजुकेशन से डील होती थी, इरेजर्स, मैप्स, पेंसिल्स वगैरह, उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। पेपर में एक एग्जेम्पशन आई है। जितने भी मेरे वर्क्स ऑफ आर्ट होते थे, एंटीक्स होते थे, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। डिफेंस के जो आर्टिकल्स होते थे, ड्रोन्स हो गए और उनके अपने रेडार्स वगैरह हो गए, उन सब का भी रेट इन्होंने एग्जेम्पशन में डाल दिया है। एंड लास्टली जो हम बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग द री इंश्योरेंसेस, गवर्नमेंट ने उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। अब तक जब चीजें एग्जेम्प्ट हो रही हैं,
अब जब चीजें एग्जेम्प्ट हो रही हैं तो इसका क्या मतलब होगा? चीजें एग्जेम्प्ट होने का मतलब क्या होगा? चीजें एग्जेम्प्ट होने का मतलब क्या ये होगा कि अब इनके ऊपर सप्लाईज का जो प्राइस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर इज नॉट यस, नॉट नो, इट विल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक आइटम्स। क्यों? जैसे ही एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनेंगी, इट मींस दैट द टैक्स पेयर इज नाउ रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी। उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और आईटीसी कौन सा रिवर्स करना पड़ेगा सर? तो उसको दो स्टेजेस पे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहला उसका आएगा वन टाइम इम्पैक्ट, यानी 22 सितंबर को जो वन टाइम इम्पैक्ट उसको लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं शार्पनर्स में डील करता हूँ, शार्पनर्स एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। शार्पनर जो है मेरे एग्जेम्प्ट हो रहे हैं 22 सितंबर से। मेरे पास 5,000 पीस शॉर्पनर्स के पड़े हुए हैं जिसपे मैंने जीएसटी पे कर रखा है। 22 सितंबर को शार्पनर पे मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, तो मेरे को वो 5,000 शॉर्पनर्स के ऊपर अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो मेरा 22 को ओपनिंग पड़ा है। 21 का क्लोजिंग, 22 का ओपनिंग जो स्टॉक आपके पास पड़ा है, जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपका प्रोडक्ट, आप शार्पनर के मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसके रिलेशन में अगर आपका कोई इनपुट पड़ा है, कोई रॉ मटेरियल पड़ा है, कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट पड़ा है, आपको वो सारा आईटीसी वन टाइम इम्पैक्ट लेके हटाना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड इफ यू हैव टेकन एनी क्रेडिट ऑफ एनी कैपिटल गुड्स, शॉर्पनर मैन्युफैक्चर करने के लिए आपके पास एक मशीन थी जिससे सिर्फ शॉर्पनर ही बनते हैं और कोई टैक्सेबल सप्लाईज नहीं बनती हैं, आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो जो 100% एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो आपको उस मशीन का भी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। 100% नहीं करना। आपके मशीन की लाइफ जीएसटी में मानी जाती है 60 मंथ की, आप 60 महीने एक एसेट को यूज करेंगे। एक्चुअल कितना करते हैं वो इररेलेवेंट है। डीम्ड लाइफ 60 मंथ है। 60 में से अगर आपने 20 महीने इस्तेमाल कर लिया तो 40 का रिवर्सल, 40 महीने इस्तेमाल कर लिया तो 20 महीने का आईटीसी आपको इम्पैक्ट में लेना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट पहले दिन ही क्रिएट हो जाएगा। इसमें कोई नहीं, मतलब वो नहीं होगा कि आप कुछ डेफर कर पाए या कुछ रिलेट, क्या क्रेडिट कंज्यूम हो चुका है, उससे भी डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, सबसे लाइव एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एरिएटेड ड्रिंक्स में डील करते हैं, कोक वगैरह में डील करते हैं, आप मोटर व्हीकल के डीलर्स हैं। अभी तक 21 सितंबर तक उन पे सेस लग रहा था, 22 सितंबर के बाद सेस खत्म हो जाएगा। सेस खत्म होने का मतलब वो एग्जेम्प्ट हो गया, अब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब उसके ऊपर सेस नहीं लगेगा तो सेस का इनपुट नहीं मिलेगा, वो भी आपको अपनी कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे भी सेस है, एक्सेप्ट फॉर पान मसाला गुटखा एक्सेट्रा, जो अभी जीएसटी में, मतलब जिसका डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बाकी सारी जगह पे अब हमें इसका इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सर मेरा वन टाइम इम्पैक्ट। इसका सब्सिक्वेंट इम्पैक्ट क्या आएगा? अब मैं डील करता हूँ कुछ टैक्सेबल प्रोडक्ट्स में, कुछ एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स में। मैं शार्पनर्स वगैरह में डील करता हूँ जो एग्जेम्प्ट हो गए, लेकिन मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो टैक्सेबल हैं। से आ, मेरे वाटर कलर, एज्यूम करते हैं कि वाटर कलर्स टैक्सेबल है, तो मैं शार्पनर्स में डील कर रहा हूँ जो एग्जेम्प्ट है, वाटर कलर्स टैक्सेबल है। अब मेरी सिचुएशन क्या हो गई, मैं टैक्सेबल सप्लाईज में भी डील कर रहा हूँ, मैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज में भी डील कर रहा हूँ। आप एक उसके ऑडिटर हैं, आप जब अपना इनवॉइस बनाएंगे, उसके लिए उसका क्रेडिट भी अपोर्शन करना पड़ेगा। एंड सर, 90% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो 24-25 का ऑडिट कर रहे होंगे 25-26 में, या सितंबर में अभी अपने इनवॉइसेस बनाएंगे 30 सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। वो सारे इनवॉइसेस पे थ्योरेटिकली अब आपको अपने क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनपुट सप्लाई, इनपुट सर्विस आपने रिसीव करी करंट ईयर में। तो उस महीने के अंदर आपको अपने जाके टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई के प्रपोर्शन करके एग्जेम्पशन को क्रिएट करना, ओ रिवर्सल को क्रिएट करना पड़ेगा। आपके अपने कैपिटल गुड्स के ऊपर रेगुलर बेसिस पे रिवर्सल करने पड़ेंगे, यानी ऑन गोइंग इम्पैक्ट ऑफ रूल 42, रूल 43 आपको लेना पड़ेगा अपने पूरे सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इज सर
अभी हमने जो डिस्कशन किया दैट वाज टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट, दैट वाज टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो पहले भी टैक्सेबल थी, अभी भी टैक्सेबल है। जो पहले भी टैक्सेबल थी, अभी भी टैक्सेबल है, लेकिन पहले टैक्सेबल थी विद आईटीसी, अब टैक्सेबल है विदाउट आईटीसी। इसमें प्रीडोमिनेटली दो आइटम्स आ रही हैं। सबसे पहली आ रही है सर होटल एकोमोडेशन। सर आप लोगों की जो अभी तक क्वेरीज आ रही है, मुझे चैट बॉक्स में 7 का पॉपअप नजर आ रहा है। आफ्टर क्लोजिंग दिस पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन मैं वो क्वेरीज को टेकअप कर लूंगा। अब होटल एकोमोडेशन में क्या हो रहा है सर, आज की डेट में क्या है, 7500 से नीचे का रूम रेंटल 7500 एंड अबव। तो अगर 7500 से बिलो है तो टैक्स रेट इज 12% विद आईटीसी, 7500 के ऊपर है तो इट इज 18% विद आईटीसी। 7500 के नीचे 12%, 7500 के ऊपर 18%। विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर, 7500 से नीचे वाले हो जाएंगे विदाउट आईटीसी। अब इसका सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने एक रूम लिया 7000 रुपए का, उस पे जीएसटी रेट 5% के हिसाब से आएगा 350 रुपए। टोटल बन गया 7350, टोटल बन गया 7350। आपने उसी रूम पे एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया क्योंकि आपका बच्चा साथ में था, तो दी अमाउंट विल गो फ्रॉम से 1000, उसके एडिशनल चार्जेस 7000 टू 8000। उसी रूम जिसपे पहले 5% जीएसटी लग रहा था, नाउ 18% जीएसटी विल अप्लाई विच इज 1440, एंड द टोटल अमाउंट विल बी 9440। 1000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू, सप्लायर ने 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, and because of change in tax 5% to 18%, that 13% is effectively is more than the value added by the supplier। क्योंकि टैक्स में चेंज आ रहा है 1090 का। 1000 रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टैक्स 1090 का इंक्रीज हो रहा है। तो इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये इंडस्ट्री, ये जो 7 से 8000 9000 रुपए की रेंज में रहेंगे, यहाँ पे इसको कैसे मिटिगेट करेंगी प्रैक्टिकली। अब सर यहाँ पे आप होटल के साथ डील करते हो तो अब आपके पास दो सिचुएशन आएगी। आपका होटल है जिसके बजट होटल है, 4000 5000 का रूम रेंटल ही है, और इसके अलावा का कोई रूम रेंटल है ही नहीं, 7500 प्लस का रूम रेंटल है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, और जो भी आपके पास आईटीसी इनपुट्स अभी पड़े हुए हैं वो सारे इनपुट्स आपको रिवर्स करने पड़ेंगे। जो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपने ले चुके हैं वो क्रेडिट गुड्स का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड प्रो राटा बेसिस पे वो तो होगा ही होगा। तो आपको गोइंग फॉरवर्ड कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बजट होटल नहीं हो, आपके पास कुछ रूम्स है 6000 7000 के, एंड कुछ रूम है 10,000 12,000 के, यानी अब आपका कुछ आईटीसी, कुछ सप्लाईज विद आईटीसी हो गई है, कुछ सप्लाईज विदाउट आईटीसी हो गई हैं, तब आपको रूल 42 रूल 43 प्रो राटा क्रेडिट मिलेगा। प्रो राटा क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ सप्लाईज हैं विदाउट आईटीसी। तो होटल इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली जो बजट होटल्स हैं उनके ऊपर काफी मेजर इम्पैक्ट है। तो एक तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि ठीक है 5% का आ रहा है उस पे। एज अ कंज्यूमर अगर हम अपनी बात करें, तो जितना अभी तक मेरा डिस्कशन हो रहा है इस इंडस्ट्री के साथ, तो आई फील कि जो लैंडिंग प्राइस है वो मोर और लेस सेम रहने वाला है, बिकॉज दे विल नाउ पास ऑन दी कॉस्ट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी इन दी रूम रेंटल। तो जो आज से 7000 प्लस 12% का था, या 6000 प्लस 12% का था, 7200 से पड़ता था, तो इफेक्टिवली वो आपको 7200 का ही होटल पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो इन एलिजिबल क्रेडिट्स उनके हो गए हैं, जो कॉस्ट उनकी बिल्डअप हो रही है वो इवेंचुअली पास ऑन हो रही है। बट जैसे ही वो इनएलिजिबल क्रेडिट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो उनका फर्स्ट टाइम मेजर चंक आएगा, तो ये धीरे धीरे करके आपको बेनिफिट पास ऑन होने लग जाएंगे। क्योंकि 1 1.5 साल बाद क्या होगा, आपके मेजर क्रेडिट्स यू आर ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल, अब वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वजह से यू विल हैव टू चेंज द रेट्स। सेकेंडली, अब एज्यूम करते हैं कि आपने अपनी बुकिंग करा रखी है एक 6000 के होटल की, जो कि है दिसंबर 2025 का। आपने न्यू ईयर का प्लान बना रखा है, से गोवा में बना रखा है। 6000 का होटल भी मैंने थियोरेटिकली एज्यूम कर लिया। तो अभी आपने उसके ऊपर 12% जीएसटी दे रखा है, क्योंकि होटल ने तो अभी 12% प्रिज्यूम करके आपसे ले लिया, लेकिन ना अभी सप्लाई हुई है
ना ही अभी टैक्स इनवॉइस कटा है। वो तो तब होगा ना जब आप एक्चुअल में होटल में जाएंगे। तो अब जब होटल आपको फाइनली इनवॉइस इशू करेगा, तो क्या वो आपको 5% -12%, 7% का रिफंड देगा? इट इज अ क्वेश्चन मार्क। वी विल सी हाउ द इंडस्ट्री विल एक्चुअली कम आउट विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। बट ये सिचुएशन बहुत जगह पे रहेंगी जहां पे एडवांस बुकिंग हो रखी है, टैक्स रेट कम हो गए हैं। उन केसेस के अंदर जो 7% का डेफिसिट है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। नेक्स्ट इज सर, सिमिलर लाइन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बोला कि अगर आप ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विसेज देते हो, विट इज बेसिकली जिम्स हो गए, हेल्थ क्लब्स हो गए, सैलून्स हो गए, ये सारी जगह पे भी 18% विद आईटीसी से रेट जो है 5% विदाउट आईटीसी हो गया। तो अगेन द रेट हैज रिड्यूस्ड टू 5%, बट इट इज विदाउट आईटीसी। अब यहाँ पे क्या होगा सर? अगेन सेम सिचुएशन। अगर आपकी कोई और टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, एंड आई एज्यूम जिम के अंदर और कोई टैक्सेबल सप्लाईज होती भी नहीं है, तो आपको पूरे का पूरा अपना आईटीसी अब रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आपकी कोई टैक्सेबल सप्लाईज है ही नहीं। आपको अपने सारे इक्विपमेंट्स का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कैपिटलाइज करा हुआ था, 60 महीने लाइफ मानी जाएगी। जितने महीने आपने एसेट को यूज कर लिया उतने का क्रेडिट रिटेन करेंगे। जो अनएक्सपायर्ड लाइफ है, जितने महीने वो कैपिटल गुड्स नहीं यूज हुए या फिर अब एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहे हैं, विदाउट आईटीसी वाली सप्लाईज को एग्जेम्प्ट सप्लाईज के एट पार्ट ट्रीट किया जाता है। तो अगर वो एज एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रीट किए जाएंगे या डीम किए जाएंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अनदर बिग इम्पैक्ट ऑन दिस इंडस्ट्री। अब सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन कई बार आती है कि सर विदाउट आईटीसी का मतलब क्या है? चलो, ब्यूटी पार्लर जिम्स, इसका क्रेडिट तो जीएसटी में 17(5) में ब्लॉक्ड है, ये तो मिलना ही नहीं है। लेकिन होटल एकोमोडेशन का अगर किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को क्रेडिट मिलता है तो वो पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। जो रेट आ रहा है इट इज फॉर द सप्लायर। जो कंडीशन है वो सप्लायर की कंडीशन है। तो सप्लायर को बोला गया दैट ही हैज टू चार्ज 5% एंड ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी आईटीसी। वो इनवॉइस जब वो रिसिपिएंट को देगा, तो रिसिपिएंट को अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 16 एंड 17। 16 बोलता है भैया आपकी सारी कंडीशन, इनवॉइस होना चाहिए, गुड सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए, सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया, टू बी मैनेजर आ गया, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। 17 बोलता है अगर आप सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कर रहे हो तो 100%, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए कर रहे हो तो प्रोराटा, और अगर ये आपका इन एलिजिबल है, ब्लॉक्ड है, तो 17(5) में बाहर। यानी रेसिपिएंट अपने हैंड्स पे उस इनवॉइस के बेसिस पे देखेगा, ये कंडीशन रेसिपिएंट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेगी। सर एट दिस जंक्चर आई वुड लाइक टू टेक दी क्वेरीज की जितनी क्वेरीज अभी आई है, क्योंकि इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो थोड़ा सा रन थ्रू करके करेंगे। वहां पे टेक्निकल नहीं होगा क्योंकि रेट चेंज हुआ है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे। बट वहां पे टेक्निकल डिस्कशन नहीं होगा। टेक्निकल डिस्कशन फिर हमारा आएगा जब हम ट्रिब्यूनल क्लोज करेंगे, उसके बाद आएगा। सो आई एम जस्ट सीइंग दी क्वेरीज और उसको वी विल ट्राई टू आंसर दी क्वेरीज। So first query is by Jyoti ji. It is saying we have to reverse with interest in case of rate change. Uh, रेट चेंज के अंदर सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 में रिवर्सल ड्यू हो रहा है, तो रिवर्सल इज गेटिंग ड्यू ऑन द डेट। तो मेरा जो वन टाइम इम्पैक्ट आ रहा है वो 18(4) की वजह से आएगा। द टाइम दैट रिवर्सल इट्स ट्रिगरिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो अगर आप सितंबर में करेंगे तो आपका कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रूल 42-43 यानी उसके बाद जब आप रिवर्सल करा करेंगे रूल 43 के अंदर, देन इट विल बी विद इंटरेस्ट। इफ रेट इज रिड्यूस्ड ऑन पैकिंग, सर अगर मेरा 12 से 5 हो रहा है तो मेरे को कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं करना। आईटीसी रिवर्सल सिर्फ दो सिचुएशन में होएगा, जब टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट हो रहा है या फिर टैक्सेबल विद आईटीसी से टैक्सेबल विदाउट आईटीसी हो रहा है। इसके अलावा और किसी स्टेज के ऊपर मेरा आईटीसी रिवर्सल नहीं हो। विपिन कौशिक जी, इफ वी आर सेलिंग ऑन डिस्काउंट मींस लेस देन, सर एमआरपी वाला इशू अभी मैं डिस्कस करूंगा, मैं अभी इसको टेकअप नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से आई एम रिन्यूइंग माई हेल्थ इंश्योरेंस विच इज ड्यू on 3rd October, but I pay before 22nd September. Will customer get refund of GST? सर जीएसटी का रिफंड आपको कैसे मिलेगा? आपकी
22 सितंबर से पहले जब आपने पे कर दिया, वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए। यू शुड वेट कि जब मेरी डेट आ जाए, जब सप्लाई का इनवॉइस बन जाए, तब आप उसकी पेमेंट करिए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ थ्योरेटिकली आप जो मर्जी बोल लीजिए, प्रैक्टिकली उनके सिस्टम से रिफंड ले पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसको प्रीपोन करिए। पे इट आफ्टर 22 सितंबर और आप उनके क्रेडिट को एडजस्ट करिए। देन अनदर क्वेरी इज, a manufacturing rate was 12%, new rate 5%. Previously, job work rate was 12%, new GST rate 5%, then job worker rate will be 5% or 18%. So job work वाला अभी हम डिस्कस करेंगे. If now there are two categories of job worker, one which has been specifically identified in the law, वहां पे रेट 5% है, जहां पे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है वहां पे 18% है. तो किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, वो नोटिफिकेशन से वी विल हैव टू सी. शैलेंद्र जी का एक क्वेरी आया है कि टैक्स ऑन चपाती पराठा नील, बट फॉर whom, बिकॉज रेस्टोरेंट सर्विसेज स्टिल 5%. सर, अभी हम बात कर रहे हैं कि चपाती और पराठा जब एज पैकेज फूड बेची जा रही है, वहां पे बात हो रही है. जैसे ही चपाती जो एग्जेम्प्ट है वो रेस्टोरेंट बेचता है, तो वो 5% विदाउट आईटीसी एक रेस्टोरेंट सर्विस बन जाती है. वही जो पेप्सी की बोतल जिसपे आप 40% जीएसटी दे के आते हो, जब आप रेस्टोरेंट में पीते हो तो 5% ही टैक्स देना पड़ता है. तो रेस्टोरेंट में क्या बोलता है, जितना भी फूड आपने कंज्यूम किया है, वो फूड जो है वो सर्विस का नेचर ले लेता है, उस पे रेट 5% है विदाउट आईटीसी. तो ऑफ द मतलब यहाँ पे जो आप हल्दीराम के पराठे या प्री पैकेज रोटी ले रहे हैं उसकी बात हो रही है. शैंकी गोयल जी का क्वेश्चन है, if we are supplying both paper and sharpeners, can we utilize input GST on sharpeners to pay the GST liability on papers, or do we need to reverse the credit also if we have already utilized such credit? सर, 21 सितंबर की शाम को या 22 सितंबर की सुबह जो भी प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया है उसका आईटीसी रिवर्स करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपका क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा है या नहीं पड़ा है. इसमें कोई नो ब्रेनर है कि 22 सितंबर को जो स्टॉक आप बेचोगे जिसपे टैक्स नहीं दोगे, उसका आईटीसी अगर आपने ले रखा है तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा. क्रेडिट लेजर में पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा करना पड़ेगा. नीरज अग्रवाल जी सिंह, वन टाइम इम्पैक्ट दोबारा से डिस्कस कर दीजिए. आई विल टेक दैट. इज देयर एनी चेंज ऑन बिजनेस सपोर्ट? सर, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज 18% वाले पे चेंज नहीं आया है, वो 18% पे ही है. 12% और 28% वाली सर्विसेज में चेंज आया या गुड्स में चेंज आया. गुड्स में बहुत सारे 18% पे भी आए, लेकिन सर्विसेज की 18% एज इट इज स्टैंड कर रही है. if GS Kunal ji की query है, if GST on stock is 28% but now it is 18%, how to consume the balance input? सर, एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी. सर्कुलर 125 रेड विद सर्कुलर 135 कैटेगोरिकली बोलता है कि एक प्रोडक्ट पहले हायर रेट पे था, बाद में लोअर रेट होता है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन सर्कुलर्स को बोला कि नहीं, इसमें जो रेफरेंस दे रखी है दैट इज इनकरेक्ट. तो अगर आप गुवाहाटी रीजन में हो तो आप उसका शेल्टर, उस जजमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा. अदरवाइज डिपार्टमेंट सर्कुलर 125 135 के बेसिस पे आपको रिफंड नहीं देगा. सर, अगर आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्री है तो ओवर द पीरियड का मतलब 2-3 महीने में जैसे ही वो वैल्यू एडिशन सरपास करेगा तो ऑलरेडी आपका क्रेडिट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको 6% का डेफिसिट है और इतना वैल्यू एडिशन आप फ्यूचर परचेज में ऐड करेंगे ही करेंगे. तो मेरा मानना है कि ये जो वन टाइम चेंज होता है इससे 2 या 3 महीने का वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट आता है, नॉट मोर देन दैट. रिवर्सल, ज्योति जी का क्वेश्चन है, रिवर्सल कैन बी मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ओनली एज वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड जीएसटी. मैम, 22 सितंबर को तो रिवर्सल ट्रिगर होगा, तो सितंबर के रिवर्सल लाइबिलिटी एवरीथिंग विल बी रिपोर्टेड इन अक्टूबर. तो ऑब्वियसली अक्टूबर के ही 3B1 के अंदर आपको सारे इम्पैक्ट को डालना है. मनीष जी, in goods bill issued before 22nd September, goods and payments will be done after 22nd September, then new rate will apply. How to adjust this by credit note? सर, अगर आपने इनवॉइस पहले कर दिया, बाकी दो इवेंट्स बाद में हो रही है, तो आप जो डिफरेंशियल अमाउंट का डेबिट या क्रेडिट नोट रेस कर देंगे. तो अगर 12 से 5 हो रही है तो 7% का क्रेडिट नोट हो जाएगा, बढ़ रहा है तो उतने का डेबिट नोट आप रेस कर देंगे. सिर्फ टैक्स अमाउंट का आपका डेबिट या क्रेडिट नोट बनेगा.
प्रीति जी का क्वेश्चन फिर अगेन एक सर्विस के लिए, सर्विस में कोई रेट चेंज नहीं आया, 18% वाली 18% के अंदर ही है। गोविंदा जी, मैन्युफैक्चरर हु परचेज रॉ मटेरियल 18% नाउ फिनिश गुड्स ह्यूज आईटीसी। सर गोविंदा जी, इन केसेस में आपको रिफंड अलाउ हो गया है। अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, रिफंड के प्रोविजंस को भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ताकि आपको ऑटोमेटिक रिफंड आना स्टार्ट हो जाए। सो जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे मैं इसको टच अप ऑन कर दूंगा। नेक्स्ट इज इन सम चैप्टर जीएसटी रेट डिपेंड अपॉन द सेल वैल्यू। सर अभी सेल वैल्यू का हम डिस्कस करेंगे, एमआरपी को डिस्कस करेंगे भुवनेश जी, तो अभी इसको मैं टेकअप नहीं कर रहा हूँ। Is there any change in rate of tax from 12% to 18%? Yes, there are many goods जहां पे रेट 12% से 18 भी हुआ है। इसका एग्जांपल पेपर ही है। पेपर में दो सेट हैं, एक 12 से 18 हुए हैं, 12 से 18 हुआ है और एक सेट 12 से एग्जेम्प्ट हुआ है। सो 12 से 18 में भी कुछ आइटम्स आई हैं। What if rates are changed again? Whether reversal of ITC now being made will again be allowed? सर आप अभी कौन सा रिवर्स कर रहे हैं? आप वो रिवर्सल कर रहे हैं जो आपका स्टॉक के अंदर है, एंड वी प्रिज्यूम कि एक साल से ऊपर की वर्किंग कैपिटल साइकिल किसी की नहीं होती है, तो एक साल तक ये मेजर इम्पैक्ट आने नहीं वाला। कल को अगर ये रेट दोबारा से टैक्सेबल होता है तो आपका जो इम्पैक्ट आ सकता है वो सिर्फ कैपिटल गुड्स पे आएगा। वी विल देन सी हाउ द गवर्नमेंट कम्स अप विद द प्रोविजन, जहां पे वो आपको बोले कि अगर आपने कोई क्रेडिट रिवर्स कर रखा है, बिकॉज इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। किसी चीज को आज एग्जेम्प्ट करने के बाद दोबारा टैक्सेबल करना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत एफर्ट वाली चीज होगी। इट विल नॉट बी इजी एंड दीज रिप्रेजेंटेशन विल गो कि हमने अपना ऑलरेडी आईटीसी लैप्स कर दिया था, तो देयर वुड बी अ न्यू मैकेनिज्म हाउ टू क्लेम बैक दोज आईटीसी। तो वो जब सिचुएशन आएगी इट विल वी विल डिस्कस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। सिद्धार्थ जी, आपका क्वेरी जो है वो अगेन एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है, वो मैं डिस्कस करूंगा जब हम सेक्टर स्पेसिफिक करेंगे। अ, गोविंद जी का क्वेरी है, आई हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक एट 18% नाउ न्यू रेट व्हाट टू डू 12%। सर अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर अपना इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड। I have already told you section 1 circular 125 रेड विद सर्कुलर 135 आपके अगेंस्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट आपके फेवर में है, फाइट ही कर सकते हैं और कोई इसका मैकेनिज्म क्रिएट नहीं होगा और इवेंचुअली ये वैल्यू एडिशन से ही सेट ऑफ होगा। सोलर इंडस्ट्री का इम्पैक्ट विशाल जी हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी क्वेरीज। टाइम लिमिटेड है, आई हैव बीन वेरी फास्ट, सॉरी फॉर दैट। अगेन गोइंग बैक टू द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो नाउ कमिंग टू दी सेक्टोरियल चेंजेस। तो जो क्वेरीज आपकी सेक्टर रिलेटेड थी उसको हम इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके। तो जितने भी पहले रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस थे, चाहे वो सोलर कुकर था, सोलर वाटर हीटर था, सोलर पैनल से, विंड मिल्स थी, वो सारी पहले 12% के रेट के ऊपर थी, इंक्लूडिंग ई व्हीकल। अब वो सारी किस रेट पे जा रही है सर? 5% पे जा रही है। ये सारी 5% के ऊपर जा रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट के ऊपर तो रेट 12% से 5% हो गया, लेकिन जब हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर के अंदर क्या होता है सर? आप अपने रूफटॉप कराते हैं, रूफटॉप के अंदर सिविल वर्क भी एग्जीक्यूट होता है। तो जहां पे सिविल वर्क एग्जीक्यूट होता है तो वहां पे लॉ ये कहता है कि अगर आप अपनी रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, जिसमें पैनल भी लगेगा, जिसपे सिविल वर्क भी होगा, सीमेंट स्टील सरिया लेबर भी लगेगी, तो वहां पे डीम वैल्यू की 100 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में से 70% को हम गुड्स मानेंगे, 30% को हम सर्विसेज मानेंगे। 70% को गुड्स मानेंगे, 30% को सर्विसेज मानेंगे। तो पहले 70% के ऊपर 12% का रेट लगता था, 30% के ऊपर 18% का रेट पड़ता था। इफेक्टिव ओल्ड सिचुएशन में आप देखेंगे तो इफेक्टिव टैक्स रेट आता था 13.80%। गोइंग फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? 70% के ऊपर 5% लगेगा, 30% पे 18% ही लगेगा, इफेक्टिव रेट आ जाएगा 8.9%। यानी जो सोलर के कॉन्ट्रैक्ट से उसके ऊपर इफेक्टिव रेट 4.9% रिड्यूस हो गया आएगा। अब सर रेट कैसे लगेगा? सर यहाँ पे अगेन अपना जो हमने डिस्कस किया था 2/3 का रूल लगेगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, उसकी इनवॉइसिंग ड्यू ही नहीं हुई, उसकी इनवॉइसिंग ड्यू हो रही है 22 सितंबर के बाद, अभी आपने एक नोशनल एडवांस दे रखा है,
तो वो अभी एडवांस गया हुआ है, तो एक इवेंट 22 सितंबर के पहले होगी। अभी सप्लाई चल रही है और वो 22 सितंबर के बाद कंप्लीट होगी। इनवॉइस 22 सितंबर के बाद बनेगा, तो आपको न्यू रेट्स लगेंगे, ओल्ड रेट्स नहीं लगेंगे। आपको 2/3 रूल के अकॉर्डिंगली अपने आप को देखना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सप्लाई कब मानी जाती है? जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट डिफाइंड होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मंथली की डेट हो सकती है, कोई इवेंट की हो सकती है, कोई एक पैरामीटर की हो सकती है कि भाई अगर आपने 4 पैनल लगा दिए तो मैं मान लूंगा कि मेरा 20% काम हो गया, फिर आपने 4 लगा लिए तो फिर मैं मान लूंगा 20%। तो जो स्टेज आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी डेट ऑफ सप्लाई डिराइव करेंगे। इनवॉइस जिस दिन आप इशू कर रहे हैं वो आपकी इनवॉइस की डेट हो गई, पेमेंट एक्चुअल हो गई, तो 2/3 का रूल लगाइए, आपका टैक्स रेट आपको पता चल जाएगा। सो इवन तो 7% रिड्यूस हुआ है, 12% से 5% पे आए हैं, बट जब आप कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे जो सोलर प्रोजेक्ट्स, वहां पे इफेक्टिव रेट आपको 4.9% की रिडक्शन मिलेगी, ना कि 7% की मिलेगी। क्यों? क्योंकि डीम्ड वैल्यू 30% सर्विसेज की मानी जाती है, जिसपे 18% का रेट है, जिसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके अलावा सर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रेट 28% से 18% हुआ है। ब्रॉडली 3 प्रोडक्ट्स हैं: एसी, डिश वॉशर्स और टेलीविजन सेट। एसी, डिश वॉशर्स और टेलीविजन सेट जो पहले 28% पे होते थे, 18% के हो गए। इनको लग्जरी गुड से अब एक डेली यूज प्रोडक्ट माना गया है और इनके रेट्स को 18% कर दिया गया। फूड आइटम्स, अगेन इट इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। फूड आइटम्स को गवर्नमेंट ने क्या किया है? या तो उनको उठा के एग्जेम्प्ट कर दिया, या उनको 5% की ब्रैकेट में ले आए। देखिए यहाँ पे आप लास्ट की 3 आइटम देखिए, 18% को भी 5% पे ले आए। इसका बेनिफिट रेस्टोरेंट्स को भी मिलेगा। रेस्टोरेंट्स को, केटरर्स को कोई आईटीसी तो मिलता नहीं था, अब उनको परचेज के ऊपर कम टैक्स देना पड़ेगा। उसका बेनिफिट भी धीरे धीरे हम देखेंगे, शायद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। शायद क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम लास्ट फेज ऑफ आर डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो फूड आइटम्स के ऊपर मैं आपको ये बोल सकता हूँ, 99.99% केसेस में या तो वो एग्जाम्प्ट है या 5% है। कुछ ड्रिंक्स की आइटम को 40% पे ले गए हैं, कुछ को मैं क्या बोलूं, ऑलमोस्ट सारी ड्रिंक्स को वो 40% पे ले गए हैं। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक दो आइटम 18% पे रह गई होंगी, बाकी सारी दी ऑब्जेक्टिव इज इधर एग्जाम और 5% की ये डेली यूज की प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीजें। उसके अलावा फूड आइटम्स के बाद डेली यूज के प्रोडक्ट्स, जैसे मेरा टॉयलेट सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, हेयर ऑयल हो गए, शेविंग क्रीम्स हो गई, आफ्टर शेव लोशन हो गए, कॉम्स हो गई, सुइंग मशीन, टूथ पाउडर, 12% या 18% जो पहले होते थे, अगेन 5%। यानी जो हमारे ग्रोसरीज के बिल आते थे, अब धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि उसके अंदर प्राइस रिडक्शन होना स्टार्ट हो रहा है। इवेंचुअली आज ना देना पड़े, लेकिन बिजनेस प्रेशर आएंगे ही आएंगे। अगर एक्चुअल ने रेट गिरा दिया तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कम कर रहा है तो इमामी को भी कम करना पड़ेगा। यानी एक स्पाइरल इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो एंटी प्रॉफिट रिंग आज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बिजनेस प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, और बिजनेस पे प्रेशर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या टेक्निक निकाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर क्या है सर, या फुटवेयर के अंदर अब 2500 रुपए का पैरामीटर आ गया है। सो अगर 2500 से नीचे है तो रेट है 5%, 2500 से ऊपर है तो रेट है 18%। यहां पे भी सर, जैसे मैंने पहले एक होटल एकोमोडेशन की डिस्कशन किया था, सेम इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ रहा है। तो एज्यूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट है, आप समझ लीजिए एक शर्ट है, वो 2400 रुपीज की है, उसके ऊपर जीएसटी 5% लगेगा, तो जीएसटी हो गया 120 का, टोटल 2520, केस 1। वही शर्ट अगर 2600 रुपए की हो जाती है तो टैक्स रेट हो जाता है 18%। सप्लायर ने कितनी वैल्यू एडिशन डाली? 200 रुपीज की। गवर्नमेंट का वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? 348 रुपीज का। 348 रुपीज से ज्यादा का वैल्यू एडिशन हो गया, 548 रुपीज का टोटल वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाता है। अगेन अब आप देखेंगे 2500 से 3000 के अंदर बहुत कम प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि एवरीवन विल ट्राई कि गवर्नमेंट को 500 रुपए के ऊपर 18% का जो टैक्स जाना है, 500 नहीं है सर, एक्चुअली में वो पूरी 1 रुपए से लेके 2500 के ऊपर भी 18% जा रहा है। तो यहाँ पे एक मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, एंड वी विल हैव टू डायसेक्ट दिस। इसको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि या तो 2500 के नीचे बैठे या कंफर्टेबली 3000 रुपए के ऊपर बैठे, क्योंकि बीच में
आपसे ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इससे रिलेटेड, जिसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट बिल्डर्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर सर क्या हो गया, कुछ आइटम्स 12% पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की रह गई थी, बहुत कम आइटम्स थी जो 12% पे रह गई थी, अब उन्होंने उसको भी उठा के 18% कर दिया है। सेकेंडली, सीमेंट का रेट 28% से 18% हो गया है। मेरी जो स्टैंड लाइन ब्रिक्स थी उनका रेट 12 से 5 हो गया है। मार्बल्स का रेट 12 से 5 हो गया है। ग्रेनाइट का रेट 12 से 5 हो गया है। अब अगर आप देखेंगे, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें सीमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। 15-20% की कॉस्ट सिर्फ सीमेंट की होती है, 10-15% की कॉस्ट मार्बल और ग्रेनाइट की होती है। तो इफेक्टिवली 30-35% की जो कॉस्ट है उसके ऊपर जीएसटी रिड्यूस होके आ रहा है। तो क्या इसका बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको सर जब ये सारे हम सेक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में हम इस पॉइंट के ऊपर 2-3 मिनट डिवोट करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सर थंब रूल देने की कोशिश कर रहा हूं। थंब रूल का मतलब ये नहीं है कि 100% सही रहेगा, बट 99.99% आपका मैच करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो, दो रेट्स आ गए, 5% विदाउट आईटीसी, 18, और सॉरी 5% विदाउट आईटीसी, 18% विद आईटीसी। एक एक्सेप्शन है नॉन इकोनॉमी क्लास एयर की, नॉन इकोनॉमी क्लास एयर ट्रेवल की, जहां पे सिर्फ एक ही रेट है 18% विद आईटीसी। उसके अलावा आपके पास दो रेट है, 5% विदाउट आईटीसी या 18% विद आईटीसी। आप स्पेसिफिक अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड द फाइनल रेट। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं दे रहे हो, आप पूरा व्हीकल दे रहे हो कि भैया तुम अपने आप देख लो, मैंने तो तुम्हें किराए पे दे दिया गाड़ी, एक है मैं आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, दूसरा है मैंने आपको गाड़ी दे दी। जब मैंने गाड़ी आपको दे दी तो गाड़ी के टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं। पहले 28% प्लस सेस होता था कुछ केसेस में, अब उन्होंने बोला क्योंकि टैक्स रेट चेंज हो रहा है, तो अगर किसी गुड्स के ऊपर 40% लगता है तो उसका लीजिंग के ऊपर रेट भी 40% रहेगा। यानी जो गुड्स का रेट है वही उसकी लीजिंग और रेंटल का रेट भी कन्वर्ट होके आएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के अंदर ये हो गया। जॉब वर्कर के अंदर सर ऑलरेडी पहले एग्जिस्टिंग की कुछ रेट्स 5% के थे, अब गवर्नमेंट ने कुछ रेट्स को और 5% की कैटेगरी में डाल दिया है, जिसमें आप देखेंगे अम्ब्रेला आ गई, या फिर ब्रिक्स से रिलेटेड काम आ गया, या फिर कुछ अगर लेदर से रिलेटेड काम है तो वो 5% के अंदर आ गए। उसके अलावा बाकी सारी चीजें 18% पे चलेगी। तो जॉब वर्कर के लिए आप ये देखिए कि आपका लिस्ट 5% में आइटम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर स्पेसिफिकली 5% की आइटम आपके पास नहीं है तो आपका डी फैक्टो 18% हो जाएगा। अब पहले एक कंफ्यूजन होती थी कि कब 12% लगेगा, कब 18% लगेगा। अगर जिसने आपको माल दिया है वो रजिस्टर्ड होता था तो हम 12% लगाते थे, वो अनरजिस्टर्ड होता था तो हम 18% लगाते थे। अब वो कंफ्यूजन खत्म, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 18% जॉब वर्क पे लगाना पड़े। अब आते हैं सर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के अंदर तीन चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स में मोटराइज, मोटराइज या तो 350 सीसी से कम या 350 सीसी से ज्यादा। 350 सीसी से कम उन्होंने बोला ये भी एक डेली यूज प्रोडक्ट है, क्योंकि अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी जा रहे हैं तो टू व्हीलर तो सबके पास होना चाहिए। 350 सीसी से कम को उन्होंने 28% की जगह 18% पे ले आए। लेकिन उन्होंने बोला 350 सीसी से ऊपर वाला प्रोडक्ट आज भी आपका लग्जरी प्रोडक्ट है, आज भी आपका लाइफस्टाइल डिफाइन कर रहा है। तो वहां पे पहले इफेक्टिव टैक्स होता था 28 + 3% का सेस 31%। तो 350 सीसी से बाइक का रेट बढ़ के हो गया है 40%। तो सेस हट गया है, यहाँ पे टैक्स रेट इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा जो नॉर्मल बाईसाइकिल्स होती थी उसका रेट 12 से 5, उन बाईसाइकिल की कोई एसेसरीज होती थी 12 से 5, या कोई भी व्हीकल्स हैं जो बाइक्स वगैरह भी हैं उसकी एसेसरीज है तो 28 से 18। अब वो चाहे 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक पे लग रही हो या नीचे वाली पे, उसकी एसेसरी का रेट 18% भी आ गया। नेक्स्ट इज, अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूं, याट्स की बात करूं या रोइंग बोट्स की करूं,
तो पहले दो प्रोडक्ट्स जो है वो प्राइमरली लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो 31%, 28 + 3% सेस, जो पहले 31% होता था अब वो 40% हो गया। रोइंग बोट्स एंड कैनोस, ये जो थे ये बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर यूज होती थी, यहाँ पे 28% से 18% यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया। अब आ जाते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर आप देखेंगे एक एक्सेप्शन है कि ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स को मैंने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ जस्ट टू क्रिएट द इमेज की इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर पाए। तो ट्रैक्टर 1800 सीसी से नीचे का है तो 5% का रेट है। उसके अलावा कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे वो आपका ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, उसका रेट जो पहले 28% होता था अब 18% हो गया। यानी जो आपके प्रोडक्ट्स को ले जाने के काम आता था, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम आता था, या फार्मर्स के काम आता था, वो सारे 18% पे हो गए। उसमें भी 1800 सीसी के नीचे का कोई ट्रैक्टर है तो वो 5% पे। व्हीकल्स के अंदर क्या है सर, जो आप और मैं फोर व्हीलर्स यूज करते हैं, या तो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन, या तो डीजल या पेट्रोल। पेट्रोल में डिस्टिंक्शन पॉइंट होगा 1200 सीसी, डीजल में होगा 1500 सीसी। पेट्रोल में 1200 सीसी, डीजल में 1500 सीसी। तो उन्होंने बोला अगर 1200 या 1500 सीसी से कम की गाड़ी है, 1200 सीसी या 1500 सीसी से कम की गाड़ी है तो 18%। और अगर 1200 सीसी या 1200 सीसी पेट्रोल से ज्यादा की है, 1500 सीसी डीजल से ज्यादा की है तो 40%। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा बेनिफिट आ रहा है एक्सयूवीज के ऊपर, जहां पे पहले 20-20, 22-22% के सेस लगते थे, जो कि अब रिड्यूस होके इफेक्टिव जो 48%, 50% लगता था वो अब सिर्फ 40% लगेगा। तो अगेन व्हीकल दो कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, छोटे बड़े। छोटे का मतलब पेट्रोल है तो 1200 सीसी, जिसमें वैसे 4000 mm की लेंथ है, वो ऑटोमेटिकली 1200 सीसी में आपको मिलती ही नहीं है। तो पेट्रोल 1200 सीसी, 1500 सीसी डीजल, ये मान लिया छोटे, उस पे 18%, बाकी सब पे 40% उन्होंने कर दिया। अगर आपका एलपीजी सीएनजी व्हीकल है तो 18%, अगर ई व्हीकल है तो 5%। एक एक्सेप्शन डीजल की आती है जो आपकी 28% से 18% यहाँ पे आ जाती है। तो मोरलेस आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18 और 40% की कैटेगरीज के अंदर आपके मोटर व्हीकल्स अब डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद इन सारी चीजों का प्रेशर कहाँ पे लोड किया गया, इन सारी चीजों का प्रेशर लोड किया है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 2, 3 और 4। ये पहले 28% टैक्स लगते थे, 12% सेस लगता था। यानी कोई भी एरिएटेड ड्रिंक जैसे कि कोक, पेप्सी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक, इन पे पहले हमारा 28% प्लस 12% सेस लगता था। अब इसके ऊपर इफेक्टिव रेट 40% ही है। लेकिन जो पहली आइटम है अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर 18 से 40 हो गया, 22% का रेट चेंज हो गया। यानी आज जो अगर हम फ्रूटी लेके आएंगे, जिसपे पहले 18% देते थे फ्रूटी पे, उसके ऊपर अब 40% का टैक्स लगेगा। यहाँ पे एक मेजर टैक्स इम्पैक्ट आया। लास्ट फिफ्थ आइटम डेली यूज आइटम नहीं है, रिवॉल्वर्स और पिस्टल्स, उन्होंने को लग्जरी प्रोडक्ट की डेफिनेशन में डाल के 28 to 40% पे उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया। और सर्विस, ये अभी हमने जो पढ़े लग्जरी गुड्स थे, लग्जरी सर्विसेज, अगर आप कैसीनोज, रेस क्लब वगैरह में जाएंगे तो आपका वहां पे, या ऑनलाइन बेटिंग गेमिंग में जाएंगे तो वहां पे आपका जो पहले 28% का रेट था, नाउ इट इज 40%। अगर आप 40% का कोई प्रोडक्ट किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, उसका रेट भी 40% है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ सारी उन्होंने इसको लग्जरी प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ले जाके इम्पैक्ट कर दिया। यानी अब जब हम गोवा जाएंगे एंड वहां पे किसी भी कैसीनो में जाएंगे तो कुछ वैल्यू हमें कम मिलेगी या उनके प्राइसेस इंक्रीज मिलेंगे। टोबैको, पान मसाला, सिगरेट प्रोडक्ट, सब पे 40% का रेट आएगा। सेस के रेट्स मैंने लिखे नहीं क्योंकि वो और क्वांटिटी बेस्ड, इट इज नॉट अ परसेंटेज बेसिस। इसकी डेट अभी आई नहीं है, तो जब आएगी तब इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं सर लास्ट टॉपिक। पहला, क्या एमआरपी चेंज करने हैं या नहीं करने हैं। दूसरा,
क्या ये बेनिफिट एक्चुअल में पास ऑन होगा या नहीं होगा। तो पहला हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन से, क्या इसका बेनिफिट पास ऑन होगा या नहीं होगा। एंटी प्रॉफिटिंग आज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंटरनल सर्कुलर निकाला जिसका एक्सट्रैक्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है, जिसके टेबल में आप देखोगे उन्होंने बोला है एमआरपी बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे अब टर्म यूज कर दी गई है एमआरपी, लेकिन मेरा अपना मानना है ये एमआरपी नहीं है, लैंडिंग प्राइस है, सेल प्राइस होना चाहिए। और इवेंचुअली इसका एफएक्यू जो आया उसके अंदर गवर्नमेंट ने उस चीज को कुछ हद तक कवर अप भी कर लिया है। तो यहाँ पे आप एमआरपी मत देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज आप एमआरपी चेंज करो या ना करो, जो चीज पहले 100 प्लस 118%, 118 की थी या 112 की थी, अब वो 105 की मिलनी चाहिए। अगर वो 105 की मिल रही है, द गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे एमआरपी की जगह आई वुड सजेस्ट इट शुड बी एक्चुअल लैंडिंग प्राइस, कि पहले क्या था अब क्या था। तो गवर्नमेंट ने जो सेकेंड राउंड ऑफ एफएक्यू आए हैं उसके अंदर मेडिकल इंडस्ट्री ने बोला था कि आप अपने एमआरपी रिवाइज कर दीजिए। तो इट वाज कमिंग कि एमआरपी रिवाइज करना मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट हैज क्लेरिफाइड एमआरपी रिवाइज करना मैंडेटरी नहीं है, आपको करने हैं। तो उन्होंने अपना प्रोसेस भी बता दिया कि आपको स्टिकर्स लगाने हैं, उसमें लिखना है। बट इफ यू आर गिविंग स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट, आपने बैनर्स लगा दिए, प्री और पोस्ट का आप रेट डिस्क्लोजर कर रहे हो, सब जगह उसको बता रहे हो, एंड एक्चुअल में आपने प्राइस को रिड्यूस कर दिया एंड यू कैन सब्सटेंशिएट इट, दैट इज द सफिशिएंट कंप्लायंस। तो हमें एमआरपी चेंज करना मैंडेटरी नहीं है, प्राइस रिडक्शन पास ऑन करना एडवाइजेबल है, एंटी प्रॉफिटरिंग नहीं है, लेकिन स्टिल भी गवर्नमेंट का रेडार आपके ऊपर रहेगा। तो ये दो चीजें हमें करना है, और आपको पब्लिसाइज करना है, एडवर्टाइज करना है, बैनर्स वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए टू सपोर्ट कि आप लोगों ने प्राइस रिडक्शन कर दिया। तो दिस इज द सबमिशन इन दैट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। नाउ इज जीएसटी ट्राइब्यूनल। सो ट्राइब्यूनल के अंदर छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, उनको मैं फटाफट लिस्ट कर देता हूं। सबसे पहला है, मैं थर्ड, चलो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। दी प्रेस रिलीज सेड कि विद इन सितंबर 2025 ट्राइब्यूनल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग दी अपील, यानी इसी महीने के अंदर। अभी तक मुझे अनलाइकली लग रहा है, बट मे बी लास्ट में वो एक दो दिन में अपील रिसीव करना स्टार्ट कर दें। सो द ट्राइब्यूनल विल स्टार्ट रिसीविंग अपील्स फ्रॉम सितंबर, दे विल स्टार्ट हियरिंग द केसेस फ्रॉम दिसंबर। अब अगर मैं सितंबर और दिसंबर को बहुत एग्रेसिव भी मानता हूं, तो आप इसमें प्लस 1 या 2 महीना कर दीजिए, बट जीएसटी ट्राइब्यूनल विल बी लाइव विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड द हियरिंग्स विल आल्सो स्टार्ट विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये तो दिसंबर बोल रहे हैं, दिस फाइनेंशियल ईयर मींस मार्च 26। मैं तो 3 महीने का क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकलॉग अपील्स, उनका क्या होगा। जो आज मेरे पास अपील के ऑर्डर पड़े हुए हैं, 1 साल पहले इशू हुआ है, 2 साल पहले इशू है, 3 साल पहले इशू है, उन सब की हेलो उन्होंने बोला लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग दी अपील वुड बी हेलो 30th ऑफ 2026। तो 30th जून 2026 के ऊपर हमें वो रिटर्न फाइल करनी है। और ये किसके लिए अप्लाई होगा, फॉर ऑल ऑर्डर इशूड अप टिल 31st of March 20 रिसीव्ड बाय द टैक्स पेयर टिल 31st March 2026। 1 अप्रैल 2026 के बाद 90 दिन नहीं मिलेंगे, उससे पहले आपकी कट ऑफ डेट 30 जून 2026 हो जाएगी। तो दे हैव गिवन सफिशिएंट टाइम। तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, कट ऑफ डेट आ चुकी है, अब लास्ट डेट का वेट मत करिए। इसके अलावा ट्राइब्यूनल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, उसमें से मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूं एक इशू, कि दैट देयर आर सर्टेन मैटर्स व्हिच विल बी हर्ड ओनली बाय द प्रिंसिपल बेंच। 109 ट्राइब्यूनल से डील करता है, उसका सबसेक्शन 5 बताता है कि एक प्रिंसिपल बेंच होगा, बाकी स्टेट की बेंचेस होंगी, कुछ सर्किट बेंचेस होंगी। तो कुछ मैटर सिर्फ प्रिंसिपल बेंच करेगा। प्रिंसिपल बेंच का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी बेंच है। यहाँ पे बेसिकली दो स्टेट्स का कंफ्लिक्ट अगर क्रिएट हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो यहाँ पे रखा गया। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है दो स्टेट इन्वॉल्व, प्रिंसिपल बेंच। अगर एंटी प्रॉफिट रिंग है, प्रिंसिपल बेंच। अगर दो बेंचेस के अंदर आइडेंटिकल क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल बेंच। अगर ओआईडीआर है या ऑनलाइन गेमिंग है, प्रिंसिपल बेंच। और अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो प्रिंसिपल बेंच।
तो ये 5 है, इसमें से जो 3 4 5 आइटम आई है वो नोटिफिकेशन 17 सितंबर को आई थी, उससे उन्होंने नोटिफाई करी है। सिंपल वर्ड्स में, जब OIDR भी क्या है, इंडिया के बाहर का बंदा है, जिसने इंडिया में रजिस्ट्रेशन ली है नेटफ्लिक्स ने सिर्फ टैक्सेस पे करने के लिए, उन्होंने बोला स्टेट बेंचेस के पास जाने दो, सीधा प्रिंसिपल बेंच के पास जाएगा। ऐसे ही ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले, उन्होंने बोला आप कहीं मत जाओ, आप सीधा प्रिंसिपल बेंच पे आओ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब दो स्टेट्स इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बहुत आई है, उन्होंने उसको डाल दिया प्रिंसिपल बेंच। तो दी लॉजिक इज वेरी सिंपल कि वो प्रिंसिपल बेंच के अराउंड घूमता है। उसके बाद सर कुछ इश्यूज हैं, अब इनको मैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारा लैप्स हो चुका है और थोड़ा सा टाइम इस पे भी लगेगा, सो आई एम जस्ट मतलब थोड़ा सा फास्ट रहूंगा ताकि क्वेरीज को लास्ट में डिस्पोज ऑफ करने के लिए टाइम डिवोट कर सके। नेक्स्ट इज इंटरमीडियरी। सर इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल बैठा, उसने एक सप्लायर ढूंढा, एक बायर ढूंढा, दोनों को मिला दिया, अपनी कमीशन ली और बाहर हो गया। एक सप्लायर ढूंढा, एक रेसिपिएंट ढूंढा, दोनों को मिलाया, अपनी कमीशन ली और बाहर हो गया, वो होता है इंटरमीडियरी। अभी तक क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में जब इंटरमीडियरीज इंडिया में थे, जो प्रिंसिपल सप्लायर होता था वो इंडिया के बाहर होता था, वो इंटरमीडियरी को पेमेंट करता था, फॉरेक्स में करता था, फिर भी वो एक्सपोर्ट नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि डीमिंग प्रोविजन था सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 सब क्लॉज बी, कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, सर्विसेज इंडिया के बाहर गई ही नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं बनती थी। तो ये गवर्नमेंट ने बोला हम सेक्शन ओमिट कर देंगे, यानी गोइंग फॉरवर्ड जब भी कोई कमीशन एजेंट है या इंटरमीडियरी है, फैसिलिटेशन चार्जिंग कोई भी करता है, उन सबकी सर्विसेज अब एक्सपोर्ट क्वालिफाई होंगी। एक्सपोर्ट क्वालिफाई होने से उनको जो पहले 18% अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर वाला बंदा GST तो देता नहीं था, अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा था, तो अब उन लोगों को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आईटीसी पहले भी मिलता था, आईटीसी का रिफंड अब मिलने लगेगा, 18% की कॉस्ट सेव होगी, तो वो मोर और लेस बेनिफिशियल स्टेज के ऊपर आएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये 22 सितंबर से नहीं आएगा। इसके लिए IGST एक्ट का सेक्शन 13(8) अमेंड होएगा, उसके लिए फाइनेंस बजट आएगा, बजट में ये प्रोविजन आएगा, प्रोविजन का फिर फाइनली फाइनेंस बिल बनेगा, बिल से एक्ट बनेगी, एक्ट के बाद सारी स्टेट्स अपने यहाँ पे इसको अमेंड करेंगी और फिर एक डेट नोटिफाई होगी। जैसे इस बार फाइनेंस एक्ट के लिए 1 अक्टूबर की डेट आ गई है, जहां पे मोर मतलब GST के सारे, एक ISD वाले पहले 1 अप्रैल 25 से आ गए थे, बाकी सारे अब 1 अक्टूबर से आ जाएंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेनल्टी की आपकी जो प्री डिपॉजिट है वो 1 अक्टूबर के बाद जो भी अपील जाएगी उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। तो एक इंटरमीडियरी का मेजर चेंज आएगा। सेकेंड है रिफंड रिलेटेड प्रोविजन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सर अब परचेज करूंगा 18 पे, रॉ मटेरियल 18 पे, आउटपुट 5% पे, ITC एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो क्या होगा? तो सर वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रेट ऑन आउटपुट इज लेस देन रेट ऑन इनपुट। तो इनपुट का रेट ज्यादा है, आउटपुट का कम है, इन्वर्टेड ड्यूटी हो गया। सर इनपुट का रेट है, इनपुट सर्विसेज की बात नहीं हो रही, कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही, इनपुट और आउटपुट, आउटपुट सर्विस भी हो सकती है। इनपुट का रेट अगर आउटपुट से ज्यादा है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, वहां पे रिफंड मिलेंगे। अब आप बोलेंगे सर रिफंड मिलेंगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने बोला 7 दिन में ऑटोमेटिक मिलेगा, प्रोविजनल रिफंड 90% उसी समय मिल जाएगा 7 दिन के अंदर। ये तो पहले भी प्रोविजन था, लेकिन पहले सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए था, फॉलो वहां पे भी नहीं होता था। अब उन्होंने रूल 91(2) 1 अक्टूबर से सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल दिया है, और उन्होंने बोल दिया कि 90% रिफंड आपको देना पड़ेगा। अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी पे नहीं आएगा सर। अभी इन्वर्टेड ड्यूटी पे क्यों नहीं आएगा मैं डिस्कस करूंगा। अभी उन्होंने बोला जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, SEZ से रिलेटेड है, वो अब आपको 7 दिन में सैंक्शन करना पड़ेगा, 90% करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तब आपको रीजंस रिकॉर्ड करनी पड़ी राइटिंग में। अभी क्या था, वो ऑप्शनल था, वो करते थे नहीं करते थे नहीं करते थे, तो 99.99% केसेस में प्रोविजनल रिफंड नहीं होता था। नाउ देयर विल बी अ रिस्क बेस्ड पैरामीटर, अगर उस पैरामीटर में टैक्स पेयर क्वालिफाई करता है तो 90% करना पड़ेगा, अगर नहीं करना पड़ रहा तो उसको रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और ये जो सेक्शन है 54(6) पे
बाय करके आता है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम सेक्शन 54(6) को अमेंड कर देंगे, उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी डाल देंगे इसकी। अब क्योंकि सेक्शन में अमेंडमेंट है, अगेन ये भी कहाँ से जाएगा, एक्ट जब तक चेंज होगी, बट दे आर सेइंग उससे पहले हम एक 1 नवंबर से इसको इफेक्टिव कर देंगे। सो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, आरओडी जो इशू होते हैं उसके थ्रू आई थिंक ये प्रोविजन को वो लोग डालेंगे, क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर, सो इट शुड कम एंड देयर शुड नॉट बी एनी मतलब रिजर्वेशन और एग्रेशन अगेंस्ट दी सेम। उसके अलावा सर पूरे प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि रजिस्ट्रेशन को लेके भी लोगों के काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड 2 बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। पहला कि रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं रहा, दूसरा कि कुछ सप्लायर जो है amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका से डील करते हैं, जो रहते तो एक स्टेट में है लेकिन इनकी सारी जगह स्टोर है, वहां पे माल रखते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला पहला, जिसको हम 1 नवंबर से ही इंप्लीमेंट कर देंगे, कि अगर आप छोटे सप्लायर हो, छोटा सप्लायर कौन, इफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन 2.5 लाख रुपए, अगर की आउटपुट टैक्स है, सर आईटीसी माइनस नहीं करना है, महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेव इनटू टैक्स रेट इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपीज और लेस, आपको 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है। दिस इज अ वेरी बिग रिलैक्सेशन दैट इज कमिंग बिफोर अस। उसकी गाइडलाइन तो होंगी कि आप छोटे टैक्स पेयर हो, बड़े हो गए तो क्या होगा, तो उसके लिए दे आर सेइंग दैट वी विल कम अप विद द स्टैंडर्ड प्रोसेस। लेकिन 96% रजिस्ट्रेशन आर एक्सपेक्टेड कि वो 3 दिन में ऑटोमेटिक आ जाए। सेकेंडली जो ईसीओ से रिलेटेड है, उनको उन्होंने बोला दैट द प्रॉब्लम इज बिफोर अस, वी आर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए वो दे आर ट्राइंग कि कैसे वो मैकेनिज्म को ईज आउट किया जा सकता है, कि अगर कोई सप्लायर ईसीओ से डील कर रहा है जिसके पास हर स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां पे क्या रिकमेंडेशन आनी चाहिए। दिस इज स्टिल इन डिस्कशन, अभी इस पे फाइनल थॉट नहीं आया, तो आई एम नॉट पुटिंग मोर टाइम ऑन दिस। नेक्स्ट इज पोस्ट सेल डिस्काउंट। मैं पहले 3 लेक्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और मटेरियल। जो लास्ट में है, सर्कुलर 251 इशू हुआ है, जिसने 3 क्लेरिफिकेशन दिए हैं, एंड तीनों क्लेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्लेरिफिकेशन कहती है, मैंने आपको माल बेचा, 1 लाख रुपए का माल बेचा, 18,000 रुपए का जीएसटी लगाया, 1,18,000 हो गया। बाद में मैंने आपको एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर दिया 10,000 रुपए का। इशू आया, क्या रेसिपिएंट जिसको वो क्रेडिट नोट मिला है, क्या उसको आईटीसी रिवर्स करना है? सर्कुलर 251 को रख लीजिए, कैटेगोरिकली स्टेटेड कि रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स नहीं करना, क्या रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स नहीं करना, बट इट शुड बी अ क्रेडिट नोट, इट कैन नॉट बी अ बैड डेट। क्रेडिट नोट का मतलब सप्लायर को डॉक्यूमेंट इशू करना है, और उसके बेसिस पे आपका जो रिवर्सल है वो मतलब आपको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। बैड डेट के केसेस के अंदर आप 100% अमाउंट रिवर्स करोगे, तो आप उसको क्रेडिट नोट नहीं बोल सकते, वो बैड डेट्स की कैटेगरी में ही रह जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट। तो पोस्ट सेल डिस्काउंट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं एलजी का डीलर, मैं एलजी का डीलर हूं, आप हो से एप्पल, आप भाई यार हमें ना एलजी की स्क्रीन चाहिए, XYZ रीजन के लिए, आप एप्पल छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरी कंपनी बन लीजिए जिसके पास स्क्रीन नहीं होती, आप आए, आपने बोला यार मेरे को तो 1 लाख स्क्रीन चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आपको 1 लाख स्क्रीन चाहिए होंगी, आप किसी डीलर के पास तो आओगे नहीं, आप जाओगे कंपनी के पास, सीधा एलजी के पास जाओगे। आपने एलजी के साथ रेट नेगोशिएट कर लिए, लेकिन एलजी बोलती है कि मेरा यहाँ पे ये डीलर है, सप्लाई तो इसी के थ्रू आएगी। तो अब क्या हो गया, तो डीलर के पास माल जा रहा है 1 लाख रुपए में, और डीलर को इंस्ट्रक्शन करी जा रही है कि आप ये माल 90,000 रुपए का बेचो। क्यों? क्योंकि डीलर को बोला गया कि जो 10,000 रुपए का है वो हम आपको कंपनसेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कस्टमर। उस केस में जो टैक्सेबल वैल्यू होगी दैट विल बी 1 लाख रुपीज, और उसके ऊपर पूरी वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा। 90,000 रुपए का इनवॉइस सीधा चला जाएगा कस्टमर के पास, 10,000 रुपए का आप मैन्युफैक्चरर को भेजेंगे, या आप पूरा 1 लाख रुपए का भेज देंगे, वो आपको टैक्स पूरे का देगा, 10,000 रुपए आप एडजस्ट कर देंगे, तो वो फंक्शनैलिटी आपको डिसाइड करनी है। बट नाउ द टैक्स विल बी पेड ऑन द इंटायर वैल्यू, यानी जो डिस्काउंट आपको मैन्युफैक्चरर पास ऑन कर रहा है,
क्योंकि उसने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में अब इंक्लूड होगा। अब सिमिलरली एलजी ने बोला यार आप ना 10-10 हजार रुपए के डिस्काउंट बांट दो, आप 10-10 हजार रुपए के डिस्काउंट बांट दो, मैं आपको दे दूंगा। आपने अपनी मर्जी से, क्योंकि उसको अपनी सेल बढ़ानी थी, आपने किसी को 10 हजार में से 8 हजार पास ऑन कर दिया, कहीं पे आपने एडवर्टाइजमेंट करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन 1 to 1 लिंकेज नहीं है, तो वो पोस्ट सेल डिस्काउंट के ऊपर कोई आपको जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन एलजी ने बोला ये लो 1 लाख रुपए 3 दिन के लिए अपने स्टोर के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट चलाइए, ये बैनर लगाइए, ये बंदे खड़े करिए, देन इट इज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक सर्विस, तो वो टैक्सेबल होगा। यानी 3 क्लेरिफिकेशन, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर रिवर्सल नहीं होगा। अगर मैन्युफैक्चरर और बायर के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट है, आप बीच में बैठे हुए हो और उसका आपको पास ऑन हो रहा है बेनिफिट, तो आपको उस बेनिफिट के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। पोस्ट सेल डिस्काउंट को उन्होंने बोला 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए, पहला जो इंडिपेंडेंट है, दूसरा जिस कंडीशनल है। कंडीशन आपको ये करना पड़ेगा तभी मिलेगा, ये करना पड़ेगा तभी मिलेगा, उस केस में जीएसटी देना है। अनकंडीशनल में अनडायरेक्शनल के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, वो अगेन आपका फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के अंदर ही कवर हो जाएगा। सर विद दिस आई हैव ट्राइड टू कवर अप ऑलमोस्ट ऑल दी अमेंडमेंट्स, और अब हम 5-10 मिनट क्वेरीज को ले लेते हैं, सो दैट देर इज अ प्रॉपर क्लोजर ऑफ दी। Yes, Tarun ji, wonderful session, wonderful coverage. आशा जी, are you there? And before that, queries हम्म। सर बहुत सारी हैं इसमें, आपने आई थिंक कई सारी कवर भी कर ली हैं। आई थिंक 743 के बाद वाली आप हाँ ले लीजिए। हाँ, चलिए। 1742 गोविंद अग्रवाल जी की क्वेरी है, आई हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द रेट ऑफ अब वो 80। डिस्कस हो गई थी। ओके, इसके बाद ले सकते हैं, है ना? विशाल जी वाली भी मैंने डिस्कस कर ली है। ओके। आई थिंक 1751। भुवनेश भुवनेश गोयल जी वाली से शायद कर सकते हैं हम लोग। अगम गुप्ता, आयुष मंका जी की क्वेरी ले ली थी, व्हाट विल बी द जॉब वर्क रेट ऑन द टेक्सटाइल ऑफ द क्लॉथ एंड जॉब वर्क स्यूइंग। अच्छा। सर अब कहीं से भी आप फाइव स्टार्ट कर फिफ्टी टू दीजिए। हाँ हाँ, यहाँ से ले लेते हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल वैल्यू इन 5.5? सर 5.5 नहीं समझ लगा, व्हाट डज दैट मीन? चलिए इसे छोड़ मीनिंग देते हैं, इससे ऊपर वाली और ले लेते हैं। आयुष जी की है, व्हाट विल बी द व्हाट जॉब विल वर्क बी रेट। दी। सर ये अगेन आपको स्पेसिफिक आइटम्स में देखना पड़ेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू मेमोराइज मोर देन 4000 टैक्स रेट्स, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। राइट राइट राइट। जॉब वर्क के दो रेट इट्स है, नॉट 5%, पॉसिबल। 12 5% और 18%। 5% के अंदर गिनती की 20-25 आइटम्स है, वो 20-25 आइटम में अगर आपका टेक्सटाइल आ रहा है तो 5% है, अदरवाइज 18%। ठीक है, रेट से रिलेटेड आई थिंक छोड़ देते हैं। एंड selling goods on MRP, department can see the benefit pass on to the customers or not, but in non MRP cases में क्या होगा? सर नॉन एम केसेस डिपार्टमेंट, से। सर नॉन एमआरपी केसेस दो या एमआरपी केसेस दो, मेरे पास एक हम कस्टमर का काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 5000 का एमआरपी है, वो 50% डिस्काउंट पे सेल करते हैं 2500 पे। अब वो कह रहे हैं कि सर हम अपना डिस्काउंट 5000 को एज इट इज रखते हैं, डिस्काउंट हमारा जो है उसको हम कम कर देंगे या हम अपना प्राइस कम कर देते हैं। तो ये सारे लॉजिक्स नहीं चलेंगे, चाहे आपका एमआरपी है या नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन करना है। 22 सितंबर से पहले लैंडिंग प्राइस मतलब टैक्स इनवॉइस पे जो वो इनवॉइस लगाता था विद टैक्सेस, वो प्राइस 22 सितंबर के बाद जो इनवॉइस पे प्राइस आ रहा है वो अगर कम हो गया तो बेनिफिट पास ऑन हुआ है। बस इसको इतना सिंपल लॉजिक रखेंगे, कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं बनेगा। बट सर इसको अगर हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेरी को, तो मेरे को जो डिपार्टमेंट ने आज की डेट में बोला, उन्होंने एमआरपी वर्ड यूज किया है, उन्होंने लैंडिंग प्राइस वर्ड यूज नहीं किया। नहीं एंड किया, इसीलिए मैंने एंड एंटी सप्लीमेंट कर। प्रॉफिटेरिंग अब खत्म हो गया 2024 में, तो डिपार्टमेंट के पास ये मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, अदरवाइज लिटिगेट तो हो सकता है अगर मान लेते हैं कि स्टेक ज्यादा है किसी का। नहीं, अगर आपको एमआरपी कम करना पॉसिबल है एंड यू वांट टू शो दी कंप्लायंस, तो कोई मनाही है ही नहीं ना, आप नहीं, करिए। सिर्फ वही डिस्काउंट पोर्शन ही कम किया है उन्होंने, जैसे बोला ना 5,000 का डिस्काउंट उन्होंने कम कर दिया, हाँ जी। और प्राइस वो सेम ही रखा वहां पे, जो अल्टीमेटली लैंडिंग प्राइस है सेम।
एमआरपी रिड्यूस कर दी, लैंडिंग प्राइस सेम है। मैम, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द इंटेंट ऑफ द लॉ, दिस इज बाईपासिंग द इंटेंट। यस, तो वो एब्सोल्युटली प्रॉब्लम, एग्री ऑन दैट पॉइंट। वो एग्री अब करते लीगली लॉ हैं। कोर्ट में जाके आप बोलोगे कि भैया हाँ, एंटी प्रॉफिटिंग है नहीं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी इच्छा, सामने वाला परचेज कर रहा है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम? वो तो रहेगा ही रहेगा। ये तो मतलब हम उस केस के अंदर, अमाउंट एट बट स्टेक शुड बी सीन कि अमाउंट यस, कितना मतलब इन्वॉल्व। as of now we I have not recommended any client to keep the entire benefit to themselves. मैंने बोला आपको समझ। पास ऑन करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, दैट इज द कॉल दैट वी विल सी, बट सेम मत रखना। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। लीगली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब लीगली प्रैक्टिकली हम तो कहीं बिल्कुल गलत ठीक नहीं है है ना एडवाइस। इसमें, लीगली हम हाँ कहीं जी गलत नहीं है ना इसमें। मैम, बात लीगल क्या होता है? लीगल का मतलब है अगर क्लाइंट ने 3 साल लड़ाई लड़ता रहा, जिसको सिर्फ मैनेज करके कुछ कर सकते थे, राइट। तो वो भी वेस्ट ऑफ एनर्जी और एफर्ट हो गया ना, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अननेसेसरी इशू बना देगा, फिर ऑफ लड़ते सही रहो बात। कोर्स। झगड़ते रहो, वो तो कंज्यूमर कोर्ट में आपके हम्म। केसेस को डिलीवर कर देगा, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। So there are many things which may come up. So as an enterprise, you have to see कि what is the cost benefit analysis, and as an image, एब्सोल्युटली। मेरे को ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो मैं वो भी देखूंगा। अभी गुड। तक जितना मेरा है, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहां पे सिर्फ एक आ रही है, एक्स ने कर दिया है, तो मेरे को तो अब करना ही पड़ेगा। तो अब तो वो कंपटीशन की रेस हो गई है, तो नाउ दे आर वांटिंग कि एंड रिजल्ट जो स्टोर्स है वहां तक उसका इम्पैक्ट जाए। बट राइट। लीगली यू आर करेक्ट, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। तरन जी, नीरज जी, प्लीज अलूड वन टाइम इम्पैक्ट अगेन। आप शॉर्ट में ले लेते हैं। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 वन टाइम इम्पैक्ट बोलता है कि कोई भी सर्विसेज या गुड्स पहले टैक्सेबल थे, अब एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। एग्जेम्प्ट हो रहे हैं तो उसमें है, अगर आपकी सारी ही सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई, केस वन, जब आपकी सारी ही सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई, तो अब आपको कोई आईटीसी तो मिलना नहीं है। तो जो आईटीसी आपके पास रॉ मटेरियल फॉर्म में गुड्स पड़े हुए हैं, सेमी फिनिश में पड़े हुए हैं, फिनिश गुड्स में पड़े हैं, 22 सितंबर की मॉर्निंग पे, अब उन पे आप टैक्स तो दोगे नहीं, तो गवर्नमेंट बोलती है उस रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश में जो रॉ मटेरियल और इनपुट्स लगे हैं, फिनिश में जो रॉ मटेरियल इनपुट लगे, सारा आईटीसी रिवर्स कर देती है। दूसरा, अगर आपके पास कोई उसकी मशीनरी थी जिससे आप वो प्रोडक्ट बनाते थे, क्योंकि अब आपको आईटीसी मिलना नहीं है, तो उस कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट रिवर्स करना है। कितना करना है? वो कहता है कि जीएसटी में आपकी लाइफ 60 महीने है, आपने वो मशीनरी 40 महीना इस्तेमाल कर रखी थी तो 20 महीना, 50 महीना इस्तेमाल कर रखी थी तो 10 महीना, 1 महीना इस्तेमाल कर रखी थी तो 59 मंथ्स। जितने महीने आपने इस्तेमाल करिए उतना क्रेडिट रखिए, बाकी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा, सर मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट कर रहा था, अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट करेंगे 22 के बाद, तो रॉ मटेरियल जो एग्जेम्प्ट वाली है वो तो आपको करना ही है, सेमी फिनिश फिनिश वो तो करना ही है। कैपिटल गुड्स को फिर आपको हर महीने प्रोराटा बेसिस टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट की टर्नओवर पे करना पड़ेगा, अगर वो कैपिटल गुड्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज हो रहा अच्छा, ये अश्विन ठक्कर जी की, इफ द सर्विसेज GST rate reduced, then the cumulative ITC can be used or required to be reversed as a goods ITC can be used. ऑलरेडी आंसर कर दिया था इन्होंने, Okay, सर okay, ने ना। okay. है। रिवर्स कोई क्रेडिट, अगर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं हो रही या विदाउट आईटीसी नहीं हो रही, आपको कोई लैप्स नहीं करना, यू कैन कैरी फॉरवर्ड, दूसरे टैक्सेबल सप्लाईज के साथ एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आई थिंक आशा जी ऑल क्वेरी आंसर्ड हो गई हैं। हाँ, बिकॉज नेक्स्ट क्वेरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यूट्यूब पर हम्म, हम इसको डालेंगे ही। तो जो न्यू definitely. अगर कोई क्वेरी है तो वो देख लेते हैं, हैविंग रिगार्ड टू टाइमिंग ऑल्सो हम्म, एंड रिलेटेड टू टॉपिक। Upwork हम्म, service fees and Upwork membership fees charged by Upwork हम्म, in case of IT service, and now we need to pay reverse charge under ITC. तरुण जी, आपको क्वेश्चन कंप्लीट लग रहा है? पिक एन आंसर। मैम एक बार ये आप रिपीट कर दो। हाँ, क्वेश्चन इज Upwork service fees and Upwork membership fees charged by Upwork in case of IT services, and now we need to pay reverse charge under 18%. बस this much is हाँ, तो written. 18% पे आपको पे करना है, पहले भी करना था, आज भी करना है, उसमें कोई चेंज भी नहीं कोई आया। चीज नहीं है। यस। एक दीप कुमार जी, ये क्वेरी इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है, प्लीज ब्रीफ मी ऑन द रेस्टोरेंट बिजनेस रिगार्डिंग जीएसटी इनपुट। मैम कुछ पहले भी नहीं मिल रहा था, जीरो।
कोई इनपुट नहीं है, रेस्टोरेंट और केटरर्स को कोई इनपुट नहीं है, जीरो पहले था, जीरो आज भी है, तो इसमें कोई चेंज आया भी नहीं है। वन लाइन में शॉर्ट आंसर, वेरी परफेक्ट। एंड गोविंद अग्रवाल जी का है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन 25 इनवॉइस टू बी मैम वॉइस ब्रेक हो रही रेज्ड है विद आशा जी। टू अ यूएस क्लाइंट। हाँ जी सर। मैम वॉइस ब्रेक हो गई थी। वॉइस, शेल आई रिपीट? यस यस गोविंद यस। गोविंद अग्रवाल जी का है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 25 इनवॉइस टू बी रेज्ड 5 अप्रैल। This client GST registration not yet obtained, revenue booked none till date. Management intent raise an invoice and collect payment. सर अगर मैनेजमेंट की इंटेंट है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, तो मैं उनको फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। लीगली 20 लाख के बाद Right. आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। 1 लाख यूएसडी का मतलब आज 85-90 के बीच में वो डॉलर चल रहा है। अप्रैल के अंदर से 80-85 के बीच में होगा। तो 80 लाख रुपए का इनवॉइस इशू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा आपको पहले टैक्स पे करना चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैं, रिफंड मांगते तो हम आपको देते। तो वो एक इशू रहेगा। तो इट इज बेटर आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, इस इनवॉइस को अभी रिपोर्ट कर दीजिए GSTR 1 के अंदर, 3B के अंदर, विदाउट पेमेंट इसकी LUTB फाइल कर दीजिए, ताकि आपके पास बाकी सारी चीजें हों। रिफंड अभी क्लेम मत करना, रिफंड जब ये थोड़ा सा लेगेसी इशू बन जाए उसके बाद जाना। Vinod ji ka is apparel would include sari item also and the same treatment as for apparel of 2500. यस यस यस। Then Neeraj Agarwal, while GST registration process, how the officer would identify the taxpayer? I think this we can leave क्योंकि अभी ये होगा इसका ये तो प्रोसेस आएगा सर। implementation. अभी Then प्रोसेस we will आएगी, see it. पूरी गाइडलाइंस आएगी। देयर वुड बी सम डिक्लेरेशन दैट यू विल हैव टू साइन व्हाइल filing the form registration application. So let us wait for that declaration. Then Bhuvnesh Goyal ji ka, what is the meaning of sale value for manufacturer? Is it sale price or MRP? In footwear, GST is 5% if sale value is up to 2500. And the concept of MRP, tariff value, declared value, ये सारे redundant हो चुके हैं। Now there is only one concept, that is transaction value. तो आपको वही देखना है। तो अप टू 2500, 5%, 2500 से ऊपर आपका वहां चला जाएगा। अब एग्जैक्टली आप 2500 की बात करें तो मुझे आप 1 मिनट दे दो, मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट वर्ड वहां पे क्या लिखा है। Mhm. एक्सीडिंग 2500, तो 2500 पे भी आपका 5% का रेट है। एक बार रीचेक भी कर लेना, वो लिखा होगा। रश्मि ठक्कर जी ने फर्दर अपनी क्वेरी में आगे लिखा है कि एज पर सर्विस रेट नोटिफिकेशन आईटीसी रिवर्सल सेक्शन कवर्ड विच इज नॉट इन द रेट नोटिफिकेशन फॉर गुड्स रिगार्डिंग रेस्टोरेंट इनपुट। पर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर्विसेज के लिए तो रूल 42, रूल 43 लगा है, लेकिन गुड्स के लिए नहीं है। सर गुड्स के अंदर ऐसी कोई आइटम नहीं है जिसमें उन्होंने बोला हो 5% विदाउट आईटीसी। गुड्स के अंदर उन्होंने बोला है एग्जेम्प्ट। हमने भी जब डिस्कशन किया, हमने एग्जेम्प्ट पढ़ा। हमने दो ही सर्विसेज को पढ़ा विदाउट आईटीसी, जो टैक्सेबल भी है लेकिन विदाउट आईटीसी। एक होटल एकोमोडेशन लेस देन 7500, दूसरा जिम्स हो गए, क्लब्स हो गए, सैलून्स हो गए। तो जब गुड्स के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं, तो वहां पे प्रोविजन क्यों डाले? सुमित जी क्वेश्चन सारे ले लिए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, so Yes. we can proceed for the formal closure of today's session. A special thanks to Tarun Bhai for wonderful discussion on these issues. And now Asha ji, please communicate for formal vote of thanks before closure. Thank you, Sumit ji. So, friends, as we conclude the today's very enlightening session, I must say, on this GST reforms, and it's my privilege to give the vote of thanks on behalf of CASA. So, first and foremost, I sincerely thanks our learned speaker Tarun Arora ji for sharing deep insights in the practical perspective on this latest changes. And definitely, sir, your explanations provide the much needed clarity. I would again repeat this.
And also would like to thanks all the participants and members who joined us today. And because your active presence reflect the strength of our professional community and the value which we place on by the continuous learning. And also, I would like to thanks and give my special gratitude to the team CASA for their dedicated efforts, and its founder Sumit Garg for conceptualizing these kind of sessions, which are very learning experience for everyone. And again, for the members, I would like to update like CASA has given its representation for the extension of tax audit due dates and the ROC statutory audit due dates also. Yesterday to the institute, and today it has been submitted to the Ministry of Finance also. Change.org पे एक petition भी चलाई थी जिसमें more than 9,000 members and tax professionals across India उन्होंने उसको साइन भी किया है, उसके साथ उस रिप्रेजेंटेशन को दिया है. तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट एंड वी आर वेरी पॉजिटिव कि कुछ टाइमली एक्सटेंशन मिल जाए. Definitely. And one more thing, ki CASA has launched this annual, it's not annual, it's life membership on its 16th foundation day. So we will request our participants to join the CASA as a life member to get all the benefits which is available to them. And for details regarding the life membership, you can connect it either to the Sumit or me offline. So, thanks to each one of you, and thank you so much, Tarunji, Atul ji, for your wonderful will be shared. deliberation. PPT will be shared through the our channel. Tarun ji, please share the presentation so we can I'm just sharing. reach members who have वैसे आशा participated. जी के पास है तो she can अच्छा, share ओके directly. ओके ओके ओके. प्रोफाइल I भी will मुझे share. I आपका will share. प्रोफाइल भी मुझे आपका वहीं से मिला था. I will share. अभी कर Thank दूंगी. you, thank you, thank you, thank you, sir. Thank you. Thanks to each one of you. Thank you so much. Okay, Thank you, everyone. Thank you, Tarun bhai. Wonderful.